شہر لاہور کے موسم کے حوالے سے تو شہر میں سردی کی شدت اختیار ہو گئی ہے، جبکہ سورج آسمان پر نمودار ہو گیا ہے۔ مطلع جزوی طور پر ابر آلود ہے۔ درجہ حرارت 16 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے اور ماہرین کا کہنا ہے کہ کل تک وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری رہے گا۔ شہر لاہور میں سردی اس وقت شدت اختیار کر چکی ہے۔ بارش کے بعد سے موسم خاصا ٹھنڈا ہو گیا ہے اور سردی بھی بڑھ گئی ہے۔ سورج آسمان پر نمودار ہو گیا ہے۔ بارش کے بعد کی یہ صورتحال ہے اور موسم کی بات کی جائے تو مطلع جزوی طور پر ابر آلود ہے۔ درجہ حرارت 16 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ ماہرین کا کہنا ہے کہ کل تک وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری رہے گا۔ تو شہر میں سردی کی شدت بڑھ گئی ہے۔ سورج آسمان پر نمودار بھی ہو گیا ہے۔ بارش کے بعد موسم کھل اٹھا ہے۔ مطلع جزوی طور پر ابھی بھی ابر آلود ہے، جبکہ ماہرین کی جانب سے پیشن گوئی کی گئی ہے کہ کل تک وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری رہے گا۔ آج صبح شہر لاہور میں متعدد علاقوں میں بارش ہوئی۔ جوہر ٹاؤن میں بارش ہوئی، ٹاؤن شپ میں بارش ہوئی ہے، کوٹ لکھپت میں، اس کے علاوہ اقبال ٹاؤن اور دیگر ملکہ علاقوں میں بھی بارش ہوئی ہے۔ بارش کے بعد سے اب دوپہر کی یہ صورتحال ہے کہ آسمان پر اب سورج نمودار ہو گیا ہے اور بارش کی وجہ سے فضائی آلودگی میں بھی خاصی کمی واقع ہوئی ہے۔ کومل اسلم ہمارے ساتھ ہیں، مزید موسم کا احوال ان سے جانتے ہیں۔ جی کومل۔ جی بالکل موسم سرما کی بارش نے لاہور شہر کو بھگو دیا ہے۔ وقفے سے بارش برسنے کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ وہیں ابھی سورج نے بھی آسمان پر نمودار ہو کر اپنی موجودگی کا احساس دلا دیا ہے اور بارش برسنے کے بعد جو ہے وہ سردی کی لہر میں مزید شدت محسوس کی گئی ہے۔ وہیں اگر درجہ حرارت کے حوالے سے بات کریں تو موجودہ ٹیمپریچر جو ہے وہ 16 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ ماہرین موسمیات کی جانب سے 6 جنوری تک شہر لاہور میں وقفے سے مختلف مقامات پر گرج چمک کے ساتھ کہیں ہلکی کہیں تیز بارش برسنے کے حوالے سے پیش گوئی بھی کی ہے۔ ہواؤں کی رفتار کے حوالے سے بات کریں تو ہوائیں جو ہے تقریباً 7 کلومیٹر فی گھنٹہ کے حساب سے ریکارڈ کی جا رہی ہیں اور محکمہ موسمیات کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ دن بھر لاہور کا ٹیمپریچر جو ہے وہ 9 ڈگری تک ڈراپ آؤٹ ہوگا اور اسی کے ساتھ جو ہے وہ سردی مزید شدت اختیار کرے گی۔ لاہوریے جو ہے وہ سردی کے موسم کو انجوائے کرتے ہوئے اپنے کام کاج کی طرف رواں دواں تو آج نہیں ہے، لیکن آج کے دن چھٹی کے دن کو جو ہے وہ انجوائے ضرور کر رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ جو ہے وہ میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ آج دن بھر زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 17 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا جائے گا۔ دن کا آغاز برستے بادلوں کے ساتھ ہوا اور یوں محسوس ہو رہا ہے کہ شام ڈھلتی چلی جا رہی ہے اور لاہور شہر میں وقفے سے بارش برسنے کا سلسلہ یوں ہی جاری رہے گا۔ اور اسی کے ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ مطلع جزوی طور پر ابر آلود ہے اور ٹھنڈی ہوائیں جو ہیں یخبستہ ہوائیں لاہوریوں کو ٹھٹھرنے پر بھی مجبور کر رہی ہیں۔ تو لاہوری جو ہیں وہ آج کافی زیادہ خوش بھی نظر آ رہے ہیں کہ چھٹی کو 4 چاند لگ گئے ہیں، بارش بھی آن برسی ہے اور موسم بھی جو ہے وہ بہت زیادہ خوشگوار ہو گیا ہے۔ لاہوریوں نے آج نہ صرف بارش کو انجوائے کیا بلکہ بارش کو انجوائے کرنے کے ساتھ گرما گرم جو ہے وہ آلو مولی والی روٹیاں ہوں، نان پکوڑے ہوں یا پھر ہوں بیسن والا نان، تو ہر کسی نے اپنے انداز میں آج کے دن کو انجوائے کیا۔ ایون موسم سرما میں ساگ اور پراٹھا بھی جو ہے وہ بھی آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ لاہوریوں کو کھابے اڑانے کے لیے بے حد پسندیدہ ہے اور آج جو ہے وہ ہر کسی نے اپنے انداز میں آج کے دن کو انجوائے کیا ہے۔ وہیں اگر ہم بات کرتے ہیں لاہور میں فضائی آلودگی کے حوالے سے تو آج دن بھر جو ہے وہ لاہور شہر میں AQI کی مجموعی شرح میں بھی اچھی خاصی کمی بھی محسوس کی گئی، کہیں پر بہت زیادہ بھی ریکارڈ کیا گیا۔ اس وقت کی صورتحال کے حوالے سے میں آپ کو بتاتی چلوں تو اس وقت AQI جو ہے وہ 272 ریکارڈ کیا گیا ہے اور شہر لاہور پہلے نمبر پر آلودہ شہروں کی فہرست میں آ چکا ہے۔ لاہور کے متعدد علاقوں کی بات کرتے ہیں تو فدا حسین میں 390 ہے، جوہر ٹاؤن اطراف 334 ہے، ولنشیا ٹاؤن اطراف 330 AQI کی مجموعی شرح جو ہے وہ ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ ماہرین موسمیات جہاں پر بارش برسنے کے حوالے سے پیش گوئی کر رہے ہیں، وہیں ماہرین موسمیات یہ بھی بتا رہے ہیں کہ فوگ کی صورتحال جو ہے وہ شام کے اوقات میں ایک دفعہ پھر سے کافی زیادہ ریکارڈ کی جائے گی۔ تو لاہوریے جو ہیں وہ باہر نکلنے سے پہلے موسمی صورتحال کے پیش نظر جو ہے وہ آگاہی ضرور رکھیں، کیونکہ موسم جیسے تبدیلیاں دکھاتا ہے تو ساتھ ہی ساتھ بہت سے خطرے بھی منڈلانے کے حوالے سے پیشگوئیاں بھی کرتا ہے اور اہم انکشافات بھی کرتا ہے۔ تو لاہوریے جو ہیں وہ احتیاط برتیں کیونکہ اب روڈز کافی زیادہ سلپری ہو چکے ہیں۔ لاہوریوں کو کہا جا رہا ہے اسپیڈ لمٹ کا خاص طور پر خیال رکھا جائے، کیونکہ ناگہانی آفات کہہ لیں یا پھر حادثات کہہ لیں وہ کہیں پر بھی کسی بھی صورت بھی رونما ہو سکتے ہیں، تو احتیاط بے حد ضروری ہے اور دوران سفر اسپیڈ لمٹ کا خاص خیال رکھنے کے ساتھ ساتھ اس بات کی بھی یقین دہانی کریں کہ نہ صرف آپ نے اپنی حفاظت کو یقینی بنانا ہے بلکہ اگر آپ اپنی اسپیڈ لمٹ کا خیال رکھیں گے تو باقی جو ہمارے ارد گرد ماحول چل رہا ہے، جو ہمارے ساتھ باقی ساتھی سفر کر رہے ہیں، ان کی حفاظت بھی جو ہے وہ یقینی بنانی ہے۔ اسی کے ساتھ جو ہے میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کا سلسلہ صبح سے ہی جاری رہا، بارش ریکارڈ کی گئی شملہ پہاڑی، جوہر ٹاؤن، ماڈل ٹاؤن، مال روڈ، جیل روڈ، اسی کے ساتھ فیروزپور روڈ کینال اور شملہ پہاڑی کی طرف جو ہے بارش اچھی خاصی ریکارڈ کی گئی اور محکمہ موسمیات کی جانب سے دن بھر بارش برسنے کا سلسلہ جو ہے وہ رہنے کے حوالے سے پیش گوئی بھی کی گئی تھی اور آج لاہوریوں نے بہت زیادہ دن کو انجوائے بھی کیا۔ دن کے
के आगाज़ के साथ ही बरसती बूंदों ने लाहौर शहर के वासियों को खूबसूरत मनाजिर पेश किए। रंग बिरंगे फूलों पर बारिश के कतरे पड़े तो न सिर्फ बारिश से नहाया हुआ हर चीज़ और हर ज़रा महसूस हो रहा था, बल्कि साथ ही साथ जो है फूलों से महकती खुशबू फ़िज़ा को भी मुअत्तर करती चली जा रही थी। और यूँ जो है वो लाहौर के बासी आज के दिन को न सिर्फ बारिश के एतबार से इंजॉय कर रहे थे, बल्कि महकती फूलों की खुशबू को भी इंजॉय कर रहे थे, क्योंकि लाहौर शहर ना सिर्फ फ़िज़ाई आलूदगी के एतबार से बहुत ज़्यादा ख़राब होता चला जा रहा है, बल्कि साथ ही साथ जो है वो फ़िज़ाई आलूदगी की मजमूई शरह बढ़ने की वजह से भी काफ़ी ज़्यादा परेशानी में भी मुब्तला नजर आए। तो लाहौरियों को कहा जा रहा है कि एहतियात करें, क्योंकि स्मोक ने काफ़ी ज़्यादा सूरत हाल बहुत ख़राब की, ना सिर्फ लाहौर के एतबार से बल्कि ग्लोबली बहुत ज़्यादा इसके असरात देखने को मिले। तो अब कहा जा रहा है कि एहतियात करें, क्योंकि लाहौर शहर में अब मौसमियाती तब्दीलियाँ मज़ीद रूनुमा होंगी, क्योंकि रवां साल जो है वो ना सिर्फ बारिश मज़ीद होगी, मौसम मज़ीद खुशगवार होगा, मौसम सरमा अपने जोबन पे रहेगा, बल्कि साथ ही साथ जो है वो ये भी बताया जा रहा है कि इस साल मौसम सर्द रहने के साथ साथ फरवरी के एंड तक जो है वो अपनी मुख्तलिफ रनाइयाँ दिखाता चला जाएगा और मुख्तलिफ रनाइयों से लाहौरी जो है महसूस भी होते चले जाएंगे, क्योंकि लाहौर शहर में सर्दी बहुत कम अरसे के लिए आती है। और इस साल तो बहुत मुश्किल से ही कह लें कि सर्दी ने लाहौर शहर में एंट्री की और फिर जोबन भी दिखाना शुरू कर दिया। और आज इस जोबन को हर कोई जो है वो अपने अपने अंदाज में इंजॉय भी कर रहा है, चाहे फूल हो, इंसान हो, जानवर हो, परिंदे खास तौर पर चहचहाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि आज वो भीग भी रहे हैं और अपनी उड़ान भी भरे हुए हैं, सर्दी को भी इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ अपनी हिफाजत को भी यकीनी बना रहे हैं। वो भी छाँव देकर, यानी कि अपने सर्दी से और जो बारिश है उसकी बरसती बूंदों से बचने के लिए दरख्तों की मुख्तलिफ टहनियों पर भी नजर आ रहे हैं, ताकि सर्दी भी इंजॉय करें, लेकिन अपनी सेहत का भी खास ख्याल रखें। परिंदों की सेहत का ख्याल जो है वो हमने रखना है, अगर हम नहीं रखेंगे तो परिंदों ने खुद ब खुद तो रखना ही है। इसी के साथ साथ जो है मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि आज दिन भर मौसमी सूरत हाल जो है वो इसी तरह से वक्त से तब्दीलियाँ दिखाती चली जाएगी। और माहिरीन मौसमियात की जानिब से शाम के औकात में फोग बढ़ने के हवाले से भी इम्कानात जो है वो ज़ाहिर कर दिए गए हैं। फोग बढ़ने की वजह से बहुत से हादसात रोनुमा हो सकते हैं अगर एहतियात ना बरती गई। तो लाहौरियों को कहा जा रहा है कि दौरान सफ़र फोग लाइट्स का इस्तेमाल भी यकीनी बनाना है, क्योंकि बारिश की बरसती बूंदें जहाँ पर रोड को स्लिपरी बना रही हैं, बिल्कुल उसी तरीके से फोग की बढ़ती सूरत हाल जो है वो ट्रैफिक की रवानी को बहुत ज़्यादा सुस्त रवि की जानिब भी ले जाती है। तो इसलिए जो है वो कहा जा रहा है कि स्पीड लिमिट खास ख्याल रखने के साथ साथ मौसमी सूरत हाल से बचने के लिए भी जो है वो अपनी हिफाजत को यकीनी बनाना है। शाम के औकात में हम ये भी देखेंगे लाहौरी जो है मुख्तलिफ तफरीही मकामात की जानिब जाएंगे, वहाँ पर इंजॉय करेंगे, आइसक्रीम खाएंगे और इसी के साथ गर्मा गर्म सूप के साथ बिल्कुल ऐसे मौसम में एहतियात लाजमी है। कोमल असलम हमारे साथ थी, तफसीलन हमें अपडेट कर रही थी मौसम के बारे में। आपका बहुत शुक्रिया। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का साइम अयूब को फौरी इलाज के लिए लंदन भेजने का फैसला। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने डॉक्टर से मुशावरत के बाद फैसला किया। मोहसिन नकवी का साइम अयूब से राबिता खैरियत दरियाफ्त की। साइम अयूब की सेहतियाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मोहसिन नकवी ने कहा कि लंदन के स्पोर्ट्स ऑर्थो के माहिर डॉक्टर्स साइम अयूब का चेकअप करेंगे। पाकिस्तान में डॉक्टर यहाँ पर मौजूद हैं, साइम अयूब के केस को देख रहे हैं, जबकि उन्होंने कहा कि डॉक्टर ममरेज़ हैं जो कि साइम अयूब की तमाम मेडिकल रिपोर्ट्स लंदन भिजवाई है उन्होंने, और साइम अयूब ज़बरदस्त बैटर हैं और पाकिस्तान क्रिकेट का असासा है, चेयरमैन पीसीबी का ऐसा कहना था। मोहसिन नकवी ने कहा कि साइम अयूब को पहली दस्तयाब फ्लाइट से केप टाउन से लंदन भेजा जाएगा, जबकि असिस्टेंट कोच अजहर महमूद भी साइम अयूब के साथ लंदन जाएंगे। साइम अयूब की इंजरी पर बहुत तशवीश है। चेयरमैन पीसीबी बोले कि उम्मीद है कि साइम अयूब चैंपियंस ट्रॉफी से कबल मुकम्मल सेहतयाब हो जाएंगे। हाफिज शहबाज अली हमारे साथ हैं। हाफिज शहबाज बताइएगा, चेयरमैन पीसीबी ने साइम अयूब को फौरी इलाज के लिए लंदन भेजने का फैसला कर लिया है। सैयद मोहसिन रज़ा नकवी ने नौजवान क्रिकेटर साइम अयूब की फिटनेस के बाद बड़ा अहम फैसला किया है। उनको फौरी तौर पे जनूबी अफ्रीका से लंदन भिजवाने का फैसला किया गया। इस सिलसिले में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन सैयद मोहसिन रज़ा नकवी ने खुद रब्ता भी हुआ है साइम अयूब के साथ। उन्होंने उनको उनके लिए नेक ख्वाहिशात का भी इजहार किया। इसके साथ साथ जो टीम के असिस्टेंट कोच हैं अजहर महमूद, वो उनके साथ ट्रैवल करेंगे इंग्लैंड, और वहाँ पे जो बेहतरीन डॉक्टर हैं उनसे टाइम लिया जा रहा है और उस सिलसिले में उनको चेकअप भी करवाया जाएगा। डॉक्टर ममरेज जो है उन्होंने साइम अयूब की जो इंजरी है उसकी जो नौयत है उसकी तमाम तर तफसीलात जो है इंग्लैंड में डॉक्टर्स के साथ शेयर की हैं और बेहतरीन जो डॉक्टर्स हैं उनके साथ रब्ता किया जा रहा है। वहाँ पे जाकर इनका इलाज करवाया जाएगा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन रज़ा नकवी का ये कहना है कि साइम अयूब के लिए बेहतरीन जो इलाज है उसका बंदोबस्त किया जाएगा और कोशिश है कि साइम अयूब जो है चैंपियंस ट्रॉफी से पहले मुकम्मल तौर पर फिट हों और वापस पाकिस्तान टीम के लिए आएँ, क्योंकि साइम अयूब मोहसिन नकवी साहब कहना है कि एक बासलाहियत और टैलेंटेड स्टाइलिश क्रिकेटर हैं और लोग उन्हें देखना चाहते हैं। जी
हाफिज शहबाज अली, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें इस हवाले से अपडेट किया। महंगी बिजली का सस्ता इलाज, वज़ीर आला फ्री सोलर पैनल स्कीम का आगाज, आज रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख। 10 अरब की लागत से 1 लाख घरों को मुफ्त सोलर पैनल मिलेंगे। 1 मीटर पर औसतन 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले घरों को सोलर मिल सकेंगे। पंजाब में 550 और 1100 वाट्स के 1 लाख सोलर पैनल दिए जाएंगे। जून 2024 में 200 यूनिट्स तक के सार्फिन को सोलर बजरिया कुरानदाजी मिलेंगे। कामयाब सार्फिन के घरों में सोलर पैनल सिस्टम बाकायदा नस्ब किए जाएंगे, जबकि सीएम पंजाब सोलर सिस्टम के हसूल के लिए रजिस्ट्रेशन घर बैठे पोर्टल से की जा सकेगी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस बारे में राव दिलशाद हुसैन हमारे साथ हैं। राव दिलशाद, आगाह कीजिएगा, क्या तरीकाकार होगा इसकी डिस्ट्रीब्यूशन का? आज आखिरी रोज़ है रजिस्ट्रेशन का सोलर पैनल का। बिल्कुल जी, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का आवाम को बिजली बिलों से मुस्तकिल रिलीफ देने का वादा जो है वो पूरा होने जा रहा है और वज़ीर आला फ्री सोलर पैनल स्कीम का आगाज किया गया, जो कि आज रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख है। 10 अरब रुपए की लागत से 1 लाख घरों को मुफ्त सोलर पैनल्स जो है वो मिलेंगे। एक ही बिजली मीटर पर औसतन 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले घरों को सोलर पैनल मिल सकेंगे। पंजाब में 550 और 1100 वाट्स के 1 लाख सोलर पैनल्स जो हैं वो फराहम किए जाएंगे। जून 2024 में 200 यूनिट्स तक के सार्फिन को सोलर सिस्टम बजरिया कुरानदाजी जो वो मिलेंगे। कामयाब सार्फिन को घरों में सोलर पैनल बाकायदा नस्ब किए जाएंगे। सीएम पंजाब सोलर पैनल सिस्टम को के असूल के लिए रजिस्ट्रेशन घर बैठे पोर्टल पर की जा सकती है। चीफ मिनिस्टर फ्री सोलर पैनल स्कीम के लिए वेबसाइट है cmsolarscheme.punjab.gov.pk पर अप्लाई किया जा सकता है। बिल का हवाला नंबर अपने कौमी शनाख्ती कार्ड 8800 पर SMS किया जा सकता है। सोलर पैनल पर में रजिस्ट्रेशन के लिए सरकारी नंबर पर भी राब्ता किया जा सकता है। सोलर पैनल की फराहमी से अवाम को बिजली के बिलों में खातिर ख्वाह रिलीफ मिलेगा, ये कहना है वज़ीर पंजाब का। उन्होंने मजीद कहा है कि पंजाब को काबिल तजदीद एनर्जी का हब बनाएंगे और ज़रूरी ट्यूबवेल भी बतदरीज सोलर एनर्जी पर मुंतकिल किया जाएगा। तलबा को 1 लाख ई बाइक देने और ई बसें आने से रवायती ट्रांसपोर्ट कल्चर खत्म होगा, ये कहना था वज़ीर आला पंजाब का। राव दिलशाद, शुक्रिया, आपने अपडेट किया। हमारे साथ ही रहिएगा। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म का लेस्को करप्शन इल्ज़ामात के हामिल अफसरान की दोबारा तयनातियों का नोटिस। राव दिलशाद, इस हवाले से क्या तफसीलात हैं, क्या हिदायत जारी की हैं वज़ीर आज़म ने करप्ट अफसरान के साथ डील करने के लिए? बिल्कुल जी, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने लेस्को में करप्शन के इल्ज़ामात के हामिल अफसरान की दोबारा तैनातियों का नोटिस लिया है और ज़राए के मुताबिक लेस्को अफसरान पर करप्शन इल्ज़ामात की तहकीकात और करप्ट अफसरान की तैनाती की इंक्वायरी के लिए कमेटी भी तश्कील दे दी गई है। कमेटी FIA अफसरान की लेस्को केसेस को छुपाने के मामले की तहकीकात भी करेगी। 12 करप्ट लेस्को अफसरान की बहाली का मामला भी कमेटी ही जो वो निपटाएगी, जबकि गैर कानूनी इलेक्ट्रिफिकेशन और तनसीबात का भी कमेटी जायजा लेगी। आपको ये बताएं कि ओवर बिलिंग की मद में ऐसे अफसरान के नाम आए थे जो कि बराह रास्त करप्शन में मुलविस थे। इनको दोबारा बहाल करने पर वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने बाकायदा नोटिस दिया और मज़ीद तहकीकात का भी हुक्म दे दिया। अब FIA इसकी मज़ीद तहकीकात भी करेगी। जी राव दिलशाद, बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम की 80 स्कीमों पर काम का आगाज, 59 अरब खर्च होंगे। दाता और निश्तर जोन का काम शुरू करवाने में सर फहरिस्त। दाता जोन की टूट फूट का शिकार गलियों पर 3 अरब 70 करोड़ रुपए खर्च होंगे। निश्तर जोन की गलियों के लिए 12 अरब रुपए की खती रकम मुख्तस की गई। शहर के मुतअद्दिद इलाकों की गलियां मुरम्मत होंगी। टफ टाइल, PCC, ड्रेनेज व सेवरेज सिस्टम, वाटर सप्लाई और स्ट्रीट लाइट्स की अपग्रेडेशन भी होगी। लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम की 59 अरब मालियत की 115 में से 80 स्कीमों पर काम का आगाज हो गया। 6 जोन्स में से दाता जोन और नश्तर जोन में सबसे पहले काम शुरू करवा दिया गया। दातागंज बख्श जोन की 967 गलियां टूट फूट का शिकार हैं। गलियों पर 3 अरब 70 करोड़ की लागत से काम का आगाज किया गया है। दातागंज बख्श जोन में 23 कंट्रैक्टर्स फर्म्स की मुद्दत से काम को पाया तकमील तक पहुंचाया जाएगा। नश्तर जोन की 2397 गलियों के लिए 12 अरब रुपए की खती रकम से काम शुरू करवा दिया गया है। नश्तर जोन की 40 स्कीमों पर काम जारी है। तरक्याती कामों का आगाज डिजिटलाइज्ड टेंडरिंग के जरिए किया गया।
रावी जोन की 29 स्कीमों के लिए 5 अरब 10 करोड़ 77 लाख की लागत से काम का आगाज किया गया है। 2 अरब 21 करोड़ की लागत से शालामार की 13 स्कीमों पर काम शुरू हो गया है। गुलबर्ग जोन की 5 स्कीमों के लिए 74 करोड़ 64 लाख और समना आबाद जोन की 4 स्कीमों के लिए 84 करोड़ 55 लाख रुपए मुख्तस हैं। लाहौर के एसएचओ को बड़ा इख्तियार मिल गया। लेन देन के मुकदमात के इंदराज का इख्तियार दे दिया गया। एसएचओ 24 घंटे में केस के इंदराज पर फैसला करेगा। एसओपी तब्दील। डीआईजी ऑपरेशंस ने फाइनल अथॉरिटी के देकर मुकदमात के इंदराज की इजाजत दी। लाहौर पुलिस ने एसएचओज को मजीद बाइख्तियार करने का फैसला कर लिया। लेन देन के मुकदमात के अंदराज के लिए एसओपीज तब्दील कर दिए गए। लेन देन के मुकदमात के अंदराज का इख्तियार एसएचओज को दे दिया गया है। एसएचओ 24 घंटे में केस के अंदराज पर फैसला करेगा। गलत मुकदमा के अंदराज पर एसएचओ जिम्मेदार होगा। इससे कबल मुकदमात के अंदराज का फैसला डीएसपी की रिपोर्ट पर एसपी करता था। डीआईजी ऑपरेशंस ने एसएचओ को फाइनल अथॉरिटी देकर मुकदमात के अंदराज की इजाजत दे दी है। डीआईजी फैसल कामरान का कहना है कि शहर में तमाम जराइम के मुकदमात 24 घंटों के अंदर दर्ज किए जाएंगे। 25% मुकदमात लेन देन के मामलात के थानों में आते हैं। एसपीज की मसरूफियात के बाइस मुकदमात के अंदराज में ताखीर बरती जा रही थी। पाकिस्तान हवाबाजी सनत के लिए अच्छी खबर सामने आई है। सऊदी एयरलाइन पाकिस्तान के लिए फ़्लाइट ऑपरेशन 2 फरवरी से शुरू कर रही है। सऊदी एयरलाइन की पहली परवाज़ रियाद से कराची पहुंचेगी। मज़ीद जानते हैं इस बारे में सईद अहमद सईद से। सईद आगाह कीजिए। बिल्कुल, पाकिस्तान की जो पहली हवाबाजी की सनत के लिए एक अच्छी खबर है वो सामने आई है। सऊदी अरब की एक और एयरलाइन जो है वो पाकिस्तान के लिए अपना फ्लाइट ऑपरेशन जो है वो 2 फरवरी से है वो शुरू कर रही है। पहली परवाज जो है वो रियाद से कराची के लिए ये ऑपरेट है वो की जाएगी और परवाजें जो है वो कराची रियाद रिद्दा के लिए ऑपरेट है वो की जाएंगी। तो इस वाले से जो अदील एयर की पहली परवाज है वो कराची पहुंचने पर तैयारी को जो है एयरपोर्ट अथॉरिटी की जानिब से जो वाटर सलूट पेश है वो किया जाएगा। जबकि फ्लाई के मुताबिक सिविल एविएशन अथॉरिटी ने जो है फ्लाई अदील को पाकिस्तान के लिए फतही ऑपरेशन की इजाजत है वो पहले ही दे दी थी। अब बकाया तौर पर शेड्यूल है वो जारी कर दिया गया है और सऊदी अरब की नई एयरलाइन की पाकिस्तान आने से जो मुसाफिरों को बरह रास्त सबकी सहूलियात हैं वो मैसर आएंगी और दूसरा कंपटीशन में इजाफे की वजह से जो मुसाफिरों को जो है सस्ती जो टिकटें हैं वो भी फराहमी उसकी आगाज है वो यकीनी बनाया जाएगा। जी सही। दूसरी जानिब पीआईए हुकाम का लाहौर से कुवैत के लिए फ्लाइट ऑपरेशन शुरू करने का फैसला सामने आया है। इस फ्लाइट ऑपरेशन का क्या शेड्यूल हुआ करेगा? जी बिल्कुल, कौमी एयरलाइन पीआईए ने जो है अब लाहौर से कुवैत सिटी के लिए फ्लाइट ऑपरेशन शुरू करने का फैसला है वो कर लिया है और पीआईए की पहली परवाज जो है वो 25 जनवरी को जो है लाहौर से कुवैत है वो ऑपरेट की जाएगी और हफ्तावार एक परवाज है वो ऑपरेट की जाएगी। PK 205 जो है वो रात 10:15 पर लाहौर से कुवैत के लिए रवाना है वो होगी। जबकि पीआईए लाहौर से कुवैत के लिए हफ्ते के रोज जो प्रवास का शेड्यूल है वो उसमें तरतीब दे दिया है। जबकि पीआईए कुवैत के लिए एयरबस A320 त्यारा है वो इस्तेमाल करेगा। जबकि कुवैत से वापस लाहौर के लिए हफ्ते 26 जनवरी की अली सुबह जो है वो 2 बजे परवाज है वो ऑपरेट की जाएगी। इससे कबल भी पीआईए जो है वो कुवैत के लिए अपनी परवाजों का सिलसिला है वो जारी रखे हुए था। कोरोना वायरस की वबा के बाद जो जैसे ही फजाई सफर के ऊपर पाबंदियां लगी उसके बाद पाकिस्तान से कुवैत के शहर की सिटी के लिए जो परवाजें हैं उसको बंद कर दिया गया था। अब दोबारा पीआईए ने नए सिलसिले से आगाज का ऐलान है वो किया है और पहली परवाज जो है वो 25 जनवरी को लाहौर से कुवैत के लिए रवाना होगी और इसके लिए पीआईए जो है वो एयरबस A320 त्यारा है वो इस्तेमाल करेगा। जी सईद, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें तफसीलन अपडेट किया। कमिश्नर ज़ैद बिन मकसूद का मनामा तजल्लो मोड़ वाहगा दौरा सफाई और तरक्याती कामों का जायजा लिया। मूसा रजा CEO LWMC बाबर साहिबदीन भी शरीक थे। CEO LWMC शाहिद काथिया और मुतल्लिका AC भी इस मौके पर हमराह थे। अहवाल जानते हैं इस दौरे का बसाम सुल्तान से। जी बसाम। जी बिल्कुल, कमिश्नर लाहौर ज़ैद बिन मकसूद ने मनावा जल्लो मोड़ और वागा का जो है वो दौरा किया। सफाई और तरक्याती कामों का जो है वो तफसीली तौर पर जायजा लिया गया। इस मौका पर जो DC लाहौर है सैयद मूसा रजा, CEO LWMC बाबर साहिबदीन, CO MCL शाहिद अब्बास काटिया भी इनके हमरा शरीक थे और मुतलका जो AC से वो भी हमरा शरीक थे। GT रोड कायद आज़म इंटरचेंज उससे लेकर जो है वो रिंग रोड और वागा बॉर्डर तक का जो 13 किलोमीटर रोड है उसकी बहाली और जो असर नौ तामीर है उसकी जो रफ्तार है और मायार है उसका तफसीली तौर पर जो है वो जायजा लिया गया। कमिश्नर लाहौर ने पूरी रोड का जायजा लिया, ऑन स्पॉट जो है वो ब्रीफिंग भी दी। मजीद जो है वो कमिश्नर लाहौर ने जो रोड तामीर की जा रही है उसके लिए बेहतरीन सीवरेज
میکنزم کے لیے واسع کے ساتھ جو ہے وہ پلان کرنے کی ہدایات بھی جاری کی. مزید ان کا کہنا تھا کہ روڈ کی تعمیر اور بحالی کے لیے ٹریفک روانی کے لیے انتہائی اہم ہے اور تعمیر کے دوران جو ہے وہ متبادل رستہ بھی لازمی فراہم کیا جائے تاکہ ڈائیورژن لگائی جائے تاکہ ٹریفک کی روانی جو ہے وہ متاثر نہ ہو. کمشنر لاہور نے مناوا واگا جو صفائی ستھرائی کا جو انتظامات ہیں ان کا بھی جائزہ لیا اور جہاں جہاں ناقص صفائی کے اسپاٹس جو ہے وہ پائے گئے اس پر جو ہے وہ سی او LWMC کو جو ہے وہ خصوصی ہدایات بھی جاری کی کہ صفائی کو جو ہے وہ یقینی بنایا جائے. جی بسام بہت شکریہ. پنجاب اسکول ٹھوکر کیمپس میں ریزیڈنٹس ویلفیئر سوسائٹی LDA ایونیو 1 کی تقریب حلف برداری. اسد منظور بٹ صدر لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن نے بطور مہمان خصوصی تقریب میں شرکت کی. صدر محمد سعید سرور اور دیگر نے بھی شرکت کی. احوال بتا رہی ہیں اسوا فاطمہ. جی اسوا. جی بالکل، ریزیڈنٹس ویلفیئر سوسائٹی LDA ایونیو 1 کی آج تقریب حلف برداری کا انعقاد کیا گیا. پنجاب اسکول میں اس وقت میں موجود ہوں. میرے ساتھ بطور مہمان خصوصی شریک ہوئے صدر لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن اسد منظور صاحب موجود ہیں. سر مجھے بتائیے گا آج کی تقریب کے حوالے سے آپ کیا ویل وشز کا جو ہے وہ خاص طور پہ LDA ایونیو والوں کو بھی اور آج کی جو حلف برداری کی تقریب ہوئی ہے اس کے حوالے سے بھی کیا موقف دینا چاہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو مبارکباد پیش کرتا ہوں LDA ایونیو 1 کے ریزیڈنٹس کو کہ جنہوں نے اپنی جو ویلفیئر سوسائٹی بنائی ہے، کیونکہ بیسیکلی تو یہ سارے کام کریں گے گورنمنٹ کے. تو جہاں پہ ڈیموکریٹک سوسائٹی ہے تو گورنمنٹ کی ہیلپ اس طرح بھی ہو سکتی ہے کہ ہم سارے دوست مل جل کے اپنے باہمی اتحاد کے ساتھ گورنمنٹ کو اسسٹ کریں، سپورٹ کریں تاکہ کام ویلفیئر کا آسانی سے ہو سکے. تو میں بڑی ویل وشیز ہے میری، کیونکہ ان کی آپس میں یونٹی جو ہے وہ گورنمنٹ کے اندر بھی اور سوسائٹی کے اندر بھی ایک بہتر طرز زندگی کو رواج قائم ہوگا. تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہ سارے دوست بڑے پڑھے لکھے، سمجھدار اور بڑے دنیا ساز لوگ ہیں. انہوں نے اپنی ساری ایکسپرٹی جب جوائنٹ کریں گے، پوری کیبنٹ ان کی اور کیبنٹ ساری ماشاءاللہ قابل لوگ ہیں، تو انشاءاللہ LDA ایونیو کے ریزیڈنٹس کی جو طرز رہائش ہے وہ شاندار ہوگی. بالکل، میرے ساتھ اس وقت جنرل سیکرٹری صاحب بھی موجود ہیں. سر آج کی تقریب میں کیا پوائنٹرز ڈسکس کیے گئے ہیں؟ کیا جو ہے وہ نئی انوویشنز، نئی چیزیں جو ہے وہ ریزیڈنٹس کی بہتری کے لیے جو ہے وہ لائی جا رہی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج اسپیشلی ہم سب لوگ یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں اس حوالے سے کہ ہم نے LDA ایونیو 1 میں جو مسائل ہیں ان کے حل کے لیے اپنی مدد آپ کے تحت وہاں پہ ہم نے لوگوں کے مسائل حل کرنے ہیں، اور جس سطح پہ LDA سے ہم فیور لے سکتے ہیں یا جہاں پہ ان کا ضرور مداخلہ ضروری ہے یا ان سے ہم نے جو کام کروانے ہیں وہ ہم مل کے ایفرٹ کریں گے اور انہیں سپورٹ بھی کریں گے اور چاہیں گے کہ وہ ہمارے کام جو ہے لوگوں کی وہ کمپلیٹ کریں یہاں پہ. اور اپنی مدد آپ کے تحت ہم نے وہاں پہ جو لائٹ اور گرینری کے یہ سارے کام انشاءاللہ ہم خود بھی کریں گے. بالکل، آپ نے جانا تمام یہ جو ہے وہ پوائنٹرز آج کی تقریب میں ڈسکس کیے گئے ہیں. میرے ساتھ صدر صاحب موجود ہیں. سر مجھے آپ اپنے حوالے سے بتائیے گا کہ آج ایک بہت بڑی تقریب ہے، حلف برداری کی تقریب ہے، بہت سارے مہمان نے شرکت کی ہے. آپ جو ہے وہ کیا انوویشنز لانا چاہ رہے ہیں ریزیڈنٹس کی بہتری کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ آج ہماری ریزیڈنٹ ویلفیئر سوسائٹی جو محکمہ سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ سے رجسٹرڈ ہے اس کی تقریب حلف برداری تھی، اور یہ ہم نے LDA ایونیو 1 کے تمام بلاک سے لوگوں کی نمائندگی لی ہے، یہاں اکٹھے ہوئے ہیں، حلف برداری ہوئی ہے. اس کے بعد ہم انشاءاللہ LDA کو انسسٹ کریں گے، LDA کے ساتھ تعاون کریں گے اور جو LDA ایونیو 1 کے چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں ان کے حل کے لیے بھرپور کوشش کریں گے. بالکل، آپ نے جانا LDA ایونیو کے تمام ریزیڈنٹس کے جتنے بھی مسائل ہیں ان کے حل کے لیے جو ہے وہ کوشش کی جائے گی. یہ آج یہاں پر حلف برداری میں تمام پوائنٹرز ڈسکس کیے گئے ہیں. جی اسفا، بہت شکریہ آپ کا. اولڈ راوینز یونین الیکشن کا شیڈول جاری کر دیا گیا. کاغذات نامزدگی جمع کرانے کی آخری تاریخ 10 جنوری مقرر. کاغذات نامزدگی واپس لینے کی آخری تاریخ 20 جنوری مقرر کی گئی ہے. تفصیلات بتا رہے ہیں کریم اختر. جی کریم. جی بالکل، اولڈ راوین یونین الیکشن کا شیڈول باقاعدہ طور پر جاری کر دیا گیا ہے. جو شیڈول جاری کیا گیا اس کے مطابق کاغذات نامزدگی جمع کرانے کی آخری تاریخ 10 جنوری مقرر کی گئی ہے، جبکہ کاغذات نامزدگی واپس لینے کی بھی جو آخری تاریخ ہے وہ 20 جنوری مقرر کی گئی. جبکہ اس کے علاوہ مختلف نشستوں کے لیے امیدواروں کی جو فہرست ہے وہ باقاعدہ طور پر 24 جنوری کو جاری کی جائے گی. اس کے علاوہ مختلف نشستوں پر کاغذات نامزدگی جمع کروانے والے جو امیدواران ہیں ان کے لیے SOPs بھی جاری کیے گئے ہیں. صدر کی نشست کے لیے عمر 45 سال مقرر کی گئی، جبکہ نائب صدر کی نشست پر انتخابات میں حصہ لینے کے لیے عمر کم از کم 40 سال مقرر کی گئی ہے. جبکہ اس کے علاوہ نائب صدر، جنرل سیکرٹری، فنانس سیکرٹری، جوائنٹ سیکرٹری کے لیے کم از کم جو عمر ہے وہ 30 سال مقرر کی گئی ہے. اور گورنمنٹ کالج میں کم از کم 2 سال تعلیم حاصل کرنے والے جو راوین ہیں وہی اس انتخابات میں حصہ لے سکیں گے. جبکہ انتخابات کا جو عمل ہے وہ 23 جنوری 2025. سلیم، بہت شکریہ آپ کا. فلیٹیز ہوٹل میں المرا فاؤنڈیشن اور المرد کے مشترکہ اشتراک سے کتاب کی تقریب رونمائی ہوئی. احوال بتا رہی ہیں فاطمہ خان. جی فاطمہ.
हरा फाउंडेशन और मुरीद फाउंडेशन के इश्तराक से जो है किताब की रनुमाई की तकरीब हुई है, जिसके मुसन्निफ जो है वो नामवर अदाकार भी हैं, समाजी शख्सियत भी हैं। हमजा अली अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं, जान लेते हैं। जी सर, मुझे बताइएगा, आपकी ज़िंदगी के तजुर्बात पे आपने किताब लिखी है, इस हवाले से जहाँ पे आपने अदाकारी में अपने जौहर दिखाए, अब आप किताब भी लिख रहे हैं, तो क्या पैगाम पहुँचाना चाह रहे हैं? देखिए जी, मैं कहता हूँ कि मैं राइटर नहीं हूँ, मैं स्कॉलर भी नहीं हूँ। मैंने बिल्कुल एक आम आदमी की हैसियत से खुदा से और आखिरत से मुतल्लिक एक किताब लिखी है, और मैंने जसारत इसलिए की क्योंकि खुदा और आखिरत हर आम इंसान का मसला है, ये सिर्फ स्कॉलर्स का मसला नहीं है, सिर्फ उलमा का मसला नहीं है। तो मेरी उम्मीद है कि जिस तरह मुझे मुश्किलें पेश आईं कि बड़ी स्कॉलरली इन्फॉर्मेशन को मैंने आम आदमी के अल्फाज में जो है वो समझा, फिर उसको प्रोसेस किया, तो ये मुश्किल किसी और इंसान को ना आए। तो मेरी कोशिश है कि लोग अगर मेरी किताब पढ़ें तो उनको भी अगर कोई ऐसा सवाल है जो मैं पूछ रहा था तो उसका आसान अल्फाज में जवाब मिल जाए, और कुछ हो ना हो, लोगों को खुदा के बारे में और आखिरत के बारे में एक याद दहानी हो जाए, ताकि मुझे उसका जो है वो अल्लाह ताला से सवाब मिले इंशाल्लाह। थैंक यू। जी बिल्कुल, हमारे साथ हमजा अली अब्बासी मौजूद थे, जिनका ये कहना था उनकी किताब लिखने का मकसद लोगों को ये बताना है कि उनकी ज़िंदगी का मकसद क्या है, आखिरत के बारे में, खुदा के बारे में, कुरान के बारे में उन तक पहुँचाना। और आज की इस तकरीब में तमाम शुरका की जानिब से उनकी इस काविश को भी खूब सराहा। फातिमा, आपका बहुत शुक्रिया।